guys, welcome to the another point of trade, which is fixed shop retailers. The B1 is fixed shop retailer. इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा बच्चों itinerant retailers, those who are not having fixed shops, they are known as itinerant retailers. और हमने उन्हीं की सारी टाइप्स देखी itinerant retailers की. अब आज का ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इसमें हम लोग देखेंगे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के बारे में. The retailer who conducts their businesses or operates it on a small scale, and we can say who are dealing in, sorry, they are also dealing in variety of goods. They are running or operating their business on small scale. And the third point of it is they are having fixed shop. They are having fixed shop. हमारा जो अगला कैटेगरी है बच्चों रिटेलर्स का, वो है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. ऐसे रिटेलर जो कि बहुत सारी चीजों का एट अ टाइम बिजनेस करते हैं, ये वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं. अपने बिजनेस को वो स्मॉल स्केल पे रन करते हैं. और उन लोगों की द अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इट इज दे आर हैविंग फिक्स्ड शॉप्स. उन लोगों की शॉप्स जो है बच्चों वो फिक्स रहेगी या फिक्स होती है. आइए देखते हैं. नाउ fixed shop retailer is again divided into, we can say, small scale fixed retailer. स्मॉल स्केल के ऊपर फिक्स्ड रिटेलर्स जो है, आइए हम उन्हीं के टाइप देखते हैं. फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स. इनको हम और एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जो कि है मेरी स्मॉल स्केल, वी कैन से फिक्स्ड रिटेलर. एंड लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड टाइप्स ऑफ देम. अगला मेरा पॉइंट भी वही है कि टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल या फिक्स्ड रिटेलर. लेट्स हैव अ लुक. First one is general store. Let's start with the first point of small scale fixed retailer, general store. Now, general store retailers they are selling goods which are required by the people, and which are general stores means what? General stores means what? They are retailers, and they are a retailer who are selling all household products, that we can say we are using the same things on daily basis. Yeah, daily products they are selling. Now, general stores means what? They are retailers. Yeah, they are, we can say, small scale of fixed retailers. They are selling household products, and they are selling things on daily basis. For example, let's take the example of, we can say, general stores. General store retailers sell goods which are required by the people for their day-to-day needs. For their day-to-day needs, just like food, we can say grains, milk, food, we can say grains, milk, soap, stationery, other perishable goods. Other perishable goods are the example of, we can say, general store. एक जनरल स्टोर की हम कोई एग्जांपल लेते हैं बच्चों. तो जनरल स्टोर जो होता है एक छोटा सा शॉप होता है, या एक बंदा जो होता है वो अपना बिजनेस स्मॉल स्केल पे या छोटे पैमाने पे रन कर रहा होता है, जिसके अंदर सारे डेली, वी कैन से, द पीपल आर सेलिंग द थिंग्स, है ना, which are required for day to day needs of a household. एक घर में रहने वाली या डेली यूजेस की जो भी डेली बेसिस या वी कैन से डेली यूज वाली जो भी जरूरत की चीजें होती है, वो सारी चीजें एक जनरल स्टोर में मिलती है. फॉर एग्जाम्पल फूड, ग्रेन्स, मिल्क, सोप्स, स्टेशनरी, पेरिशेबल गुड्स, और एक और ले लेते हैं यहाँ पे मेडिसिन. ये सारी चीजें उन जनरल स्टोर्स में वी कैन से इजीली अवेलेबल हो जाती है. Now, the general store is also providing sometimes home delivery facilities to the customer. ये अपने कस्टमर को होम डिलीवरी के फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है.
और ये वी कैन से सारी चीजों के अंदर डील करने वाला बंदा होता है बच्चों मेरा जनरल स्टोर। आइए देखते हैं अगला वाला पॉइंट। और इनकी शॉप्स फिक्स्ड होती है एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर। आई गो ऑन विद द नेक्स्ट वन, सेकंड हैंड गुड्स शॉप। सेकंड हैंड, okay, the second one is second hand goods shop. These retailers purchase and sell used goods. Now they are purchasing, they are purchased or sales used goods. यूज की हुई चीजों को ये लोग खरीदते या बेचते हैं। यूज गुड्स दे डील इन, एंड द एग्जांपल ऑफ इट इज फर्नीचर, बुक्स। Usually second hand goods shop, they are usually purchased and sales used goods. Usually ये लोग भी क्या से पुरानी चीजों को खरीदते या बेचते हैं। और उसके एग्जाम्पल बन जाते हैं बच्चों मेरे, वी कैन से बुक्स, फर्नीचर, वी कैन से टीवी, समटाइम क्लोथ्स, समटाइम टीवी क्लोथ्स, या यहाँ पे आ जाएंगे मेरे कार्स, बाइक, एक्सेट्रा। ये इन सारी चीजों को सेकेंड हैंड तरीके से खरीदते और बेचते हैं। आफ्टर रिपेयरिंग द गुड्स एंड सेटिंग देम इन अ वर्किंग कंडीशंस, है ना, आफ्टर रिपेयरिंग देम, after repairing them and setting them in a condition to resell the same thing to the customers. सेकेंड हैंड गुड्स की जो शॉप रहेगी बच्चों, उसका एक पर्टिकुलर स्पॉट फिक्स रहेगा। ये लोग जो करेंगे कि चीजों को वीकेंड से जो भी चीजों को खरीदते या बेचते हैं वो यूज्ड की होती है या वो पुरानी होती है, सेकेंड हैंड होती है। यूजुअली ये लोग कौन सी चीजों में डील करते हैं बच्चों, तो यूजुअली दे डील इन फर्नीचर, बुक्स, टीवी, क्लॉथ्स, cars and bikes. Now what they are doing guys, first they'll repair the things and after repairing the things they'll resell the same things in the market. ये चीजों को रिपेयर करके मार्केट में बेचते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। पुरानी चीजों को फिर से रिपेयर करके नया करके बेचते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है बच्चों, वी कैन से सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। थर्ड वन इज अथोराइज्ड डीलर्स। Let's take the example of authorized dealers. These retailers have an authorized dealership of a particular manufacturer's good. Now they are dealing in a particular product, particular goods. For example, authorized dealers means what? Usually these retailers have authorized dealership. इनकी एक authorized dealership होती है और ये लोग किसी एक या दो चीजों में ही डील करते हैं। Now they deal in goods like, now the examples of it is usually they deals in, we can say TV sets. Usually they deals in TV sets. We can say washing machines, TV sets, washing machines, automobiles, electronic items, music systems, and etc. Okay, authorized dealer, we can say, always tries to maximize their sale of goods because they get good commission from manufacturers. Okay, अब हमारे देखते हैं authorized dealers, as they are getting good commission from the manufacturer, that's why they are dealing in only particular goods. हमारे ये जो authorized dealers होते हैं बच्चों, ये we can say कुछ branded चीजों में ही डील करते हैं। जैसे कि if we'll take the example of electronic items, या we can say TV and washing machine. So usually they deal in, we can say Videocon, Videocon रहेगा, Panasonic रहेगा, Samsung रहेगा। Usually they deals in, we can say, particular type of goods. Why? Because they are getting, we can say, they are getting a good commission from the manufacturer. पर्टिकुलर चीज में डील करने के लिए उनको मैन्युफैक्चरर से बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। और यूजुअली अथोराइज्ड डीलर्स जो होते हैं वो सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को बेचने के लिए ही उनके ऊपर एक अथोराइजेशन का स्टैंप लगा होता है।
अब यूजुअली वो चीजें जो सेल करते हैं बच्चों, वो होती है टीवी सेट्स, वॉशिंग मशीन्स, कोई भी ऑटोमोबाइल्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिसमें कि म्यूजिक सिस्टम्स और बहुत सारी चीजें आ जाती है। इनकी भी शॉप्स फिक्स रहेगी। इन्हें अथोराइज्ड डीलर्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज यूजुअली दे आर डीलिंग इन selected or particular goods. Move on to the next one, guys, which is specialty shops. Specialty shops. अगला है मेरा specialty shops. Specialty shops means these retailers deal in, okay, specialty shops means usually these retailers are deal in, we can say, particular line of goods. Usually they are dealing in, we can say, particular line good. यूजुअली ये लोग बहुत ही स्पेशल चीजों में बिलीव करते हैं या बहुत ही स्पेशल चीजों में वीकेंड से बिजनेस करते हैं। दे कीप अ वाइड वैरायटी ऑफ आइटम ऑफ सेम लाइन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, स्पेशलिटी शॉप के अंदर क्या होता है? यूजुअली दे आर सेलिंग पर्टिकुलर लाइन गुड। ये एक पर्टिकुलर टाइप का ही प्रोडक्ट जो है उसकी एक लाइन लगा देते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टॉय शॉप। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ टॉय शॉप। एक टॉय शॉप के अंदर क्या होता है बच्चों? कि टॉय शॉप के अंदर बहुत सारे, द पर्सन इज सेलिंग टॉयज, है ना, ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। एक टॉय शॉप के अंदर वो बंदा, उसकी शॉप स्पेशल किसके लिए है? टॉयज के लिए है। तो उसकी शॉप में टॉयज की वैरायटी मिलेगी हमें, बहुत एक से एक टॉयज, डिफरेंट डिफरेंट टॉयज हमें उस पर्टिकुलर चीज में शॉप में देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशल शॉप जो रहेगी बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर वो शॉप स्पोर्ट्स की है, स्पोर्ट्स की शॉप है, तो वहां पे आपको वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मिल जाएगी। वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल you'll get in these shops। ये हो जाती है मेरी स्पेशलिटी शॉप्स कि वहाँ पे कोई भी एक ही चीज का वी कैन से सारा डिटेल में सारी चीजें वहीं पे मिल जाएगी। इन्हें हम बोल देते हैं स्पेशलिटी शॉप्स। आइए अगला देखते हैं हमारा लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज गाइस, अभी हमने देखा स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। अब आइए देखते हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स और उनके टाइप। लार्ज स्केल वी कैन से फिक्स रिटेलर्स जो रहेंगे मेरे, वो रहेंगे बच्चों द रिटेलर्स हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑपरेशंस ऑन अ लार्ज स्केल। द बिजनेसमैन who we can say conducts their business on large scale। Those who are conducting their business on large scales, they are known as large scale fixed retailers। इन्हें ही हम लोग बोलेंगे बच्चों लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। अब आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो जाता है। they are investing, we can say they are investing a huge amount of capital, huge amount of capital। They are deal in variety of goods। Now let's talk about large scale fixed retailers। Usually large scale fixed retailers, they are conducting their businesses on large scale, and for that, for running their business on large scale, they need or they require huge amount of capital, and simultaneously they are dealing in variety of goods। जो हमारे लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर होते हैं बच्चों, वो लोग उनका बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर कंडक्ट करते हैं या बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं। इसके लिए उनको कैपिटल भी ज्यादा लगता है और उनके पास में चीजों की वैरायटी भी थोड़ी ज्यादा होती है। आइए देखते हैं हम इसका वी कैन से इसके टाइप्स क्या क्या है। तो वी कैन से हमारा ये जो है टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स है बच्चों, इसके जो टाइप्स बन जाएंगे हमारे, वो रहेगा मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर, in it things are placed we can say department wise। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर क्या रहेगा बच्चों कि मेरी जो चीजें रहेगी वो डिपार्टमेंट वाइज स्टोर करके रखी रहेगी। द नेक्स्ट वन इज सुपरमार्केट। सुपरमार्केट shop। Now supermarket shop is, it's a large retail organization which usually deals in variety of goods such as foods and groceries। Move on to the third one, guys, which is your chain store, which is your chain store। The third one is chain store। chain
Chain store are a retail store owned by a single organization. एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्टिकुलर वी कैन से चेन स्टोर को रन करेगी या चलाएगी. चेन स्टोर इज वी कैन से network of number of branches situated at different localities of city. चेन स्टोर क्या रहेगा कि एक चेन रहेगी इस पर्टिकुलर स्टोर की जो कि जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस अवेलेबल हो सकती है. ठीक है. अगला रहेगा मेरा वन प्राइस शॉप. नेक्स्ट वन इज वन price shop means prices are fixed in this shop just like sale ये 99 का है 100 का है 49 का है and we can say the last one is which is fifth one mall. फिफ्थ वाला रहेगा हमारा मॉल. मॉल के अंदर क्या रहेगा कि all things are under one roof. So these are the examples of large scale fixed retailers. लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स की एग्जांपल्स है बच्चों मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, चेन स्टोर, वन प्राइस शॉप जहाँ पे चीजों की प्राइसेस फिक्स होगी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज माय मॉल. सारी चीजें मेरे को एक ही रूफ के अंडर में जब मिल जाएगी. अब हम इससे अगले लेक्चर में इन सभी के फीचर्स है या इनकी कुछ डेफिनेशंस है वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.